اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج ہم 10th کلاس کے ایکسرسائز 1.2 کا کوشچن نمبر 3 کریں گے، جس کا پہلا سوال یہ کہتا ہے کہ فائنڈ ملٹیپلیکیٹیو انورس آف کمپلیکس نمبر. کمپلیکس نمبر دیا گیا ہے، آپ نے اس کا کیا کرنا ہے، ضریب معکوس معلوم کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس کوئی کمپلیکس نمبر اور اس سے ضریب معکوس کی کیا پراپرٹیز ہوتی ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی نمبر دیا گیا، اس کو ہم نے کمپلیکس نمبر دیا گیا ہے، اس کو ہم نے زی لیٹ کیے ہیں. اب زی ڈاٹ زی انورس، یہ ہمارے پاس کیا ہے، زی انورس کی فارم میں پڑے. تو اگر ہم اس کو کریں گے ملٹیپلائی کریں گے تو اس کا آنسر کیا آنا چاہیے، 1 آ جائیں گے. جیسے کہ ہمارے پاس یہاں پر زی ہے تو زی انورس اس کو 1 بائی زی کریں گے تو زی سے کٹ جائے گا، تو یہاں پر کیا بچے گا، 1 بچے گا. تو یہ پراپرٹیز آپ نے یہاں پر اپلائی کرنی ہے اور کمپلیکس نمبر کا کیا کرنا ہے، آپ نے ضریب معکوس معلوم کرنا ہے. اب یہ نمبر دیا گیا ہے، ہمارے پاس کمپلیکس نمبر ہے. اس کو پہلے ہم فرض کر دیں گے لیٹ اس زی از اکول ٹو 4 پلس 5 ایوٹا. 5 امیجنری پارٹ ہے. اب اس کو کیا کریں گے، ہم 1 بائی زی کر دیں گے از اکول ٹو 1 بائی 4 پلس 5 ایوٹا آ جائے گا. اب اس کمپلیکس نمبر کا جو 1 بائی زی ہے، یہ اس کا کیا ہے، ہمارے پاس ضریب معکوس ہے، یعنی کہ ملٹیپلیکیٹیو انورس ہے. تو اس کو کیا کریں گے، پہلے ہم سب سے پہلے اب یہ اس کی فارم آ گئی، لیکن یہ جو نمبر دیا گیا ہے یہ ہمارے پاس کمپلیکس نمبر نہیں ہے. یہ کمپلیکس نمبر ہے لیکن 1 بائی زی کو ہم نے 1 بائی 4 پلس 5 ایوٹا لکھا ہے، تو یہ ہمارے پاس کمپلیکس نمبر نہیں ہے. یہ ہمارے پاس یہاں پر مکس کیا ہوا ہے. تو اس کو ہم کیا کریں گے، سیپریٹ کریں گے، کانجوگیٹ لیں گے. کانجوگیٹ لینے کے بعد اس کو الگ الگ ہو جائیں گے. تو پھر اس نمبرز کا جو کمپلیکس نمبر کا وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا، ضریب معکوس، یعنی کہ ملٹیپلیکیٹیو انورس آ جائے گا. تو ہم کانجوگیٹ لیں گے 1 بائی 4 پلس 5 ایوٹا ملٹیپلیکیٹیو ضرب کریں گے 4 مائنس 5 ڈیوائڈ بائی 4 مائنس 5 آ جائے گا. اب اس کو 1 بائی زی از اکول ٹو 4 مائنس 5 ڈیوائڈ بائی، یہاں پر ہمارے پاس ایک الجبرک فارمولا لگے گا، وہ اے پلس بی اے مائنس بی از اکول ٹو اے اسکوائر مائنس کیا آ جائے گا، بی اسکوائر. تو یہاں پر کیا ہوگا، اے 4 اسکوائر مائنس 5 ایوٹا اسکوائر آ جائے گا. 1 بائی زی از اکول ٹو 4 مائنس 5 آئی اور یہاں پر 16 25 ایوٹا اسکوائر ہوگا. 1 بائی زی از اکول ٹو 4 مائنس 5 ایوٹا اور 16 مائنس 25 مائنس ایوٹا آ جائے گا. اب 1 بائی زی از اکول ٹو 4 مائنس 5 ایوٹا ڈیوائڈ بائی، اب یہ 16 اور پلس 25 ہو جائیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا، 41. اب یہاں پر اس کے آگے کیا کریں گے، 1 بائی زی از اکول ٹو، اس کو ہم نے کر دینا ہے، سیپریٹ کر دینا ہے، 4 بائی 41 مائنس 5 بائی 41 اور یہاں پر کیا آ جائے گا، آئی آ جائے گا. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، کمپلیکس نمبر کا ملٹیپلیکیٹیو انورس ہے 1 بائی زی. اب ہم کوشچن نمبر 3 کا دوسرا پارٹ کریں گے. یہاں پر کیا کریں گے، لیٹ کریں گے اس کو، لیٹ اس زی از اکول ٹو 6 پلس 2 ایوٹا. اب اس کو 1 بائی زی کریں گے از اکول ٹو 1 بائی 6 پلس 2 ایوٹا آ جائے گا. اس کا کانجوگیٹ لیں گے از اکول ٹو 1 بائی 6 پلس 2 ایوٹا ملٹیپلیکیٹیو، اسے ڈیوائڈ بھی کریں گے 6 پلس 2 ایوٹا کو اور ملٹیپلائی بھی کر دیں گے، اور 6 مائنس 2 ایوٹا ڈیوائڈیڈ بائی 6 مائنس 2 ایوٹا کانجوگیٹ لیا ہم نے. اس سے کیا آئے گا مزید، اسے 1 بائی زی از اکول ٹو 6 مائنس 2 ایوٹا، اس کے بعد 6 اسکوائر مائنس 2 ایوٹا اسکوائر آ جائے گا. 1 بائی زی از اکول ٹو 6 مائنس 2 ایوٹا ڈیوائڈ بائی 36 مائنس 4 ایوٹا اسکوائر آ جائے گا. 1 بائی زی از اکول ٹو 6 مائنس 2 ایوٹا ڈیوائڈیڈ بائی 36 مائنس 4 مائنس 1 آ جائے گا. اب 1 بائی زی از اکول ٹو 6 مائنس 2 ایوٹا ڈیوائڈیڈ بائی 36 پلس 4 آ جائے گا. یہاں پر کیا ہوگا، 1 بائی زی از اکول ٹو 6 مائنس 2 ایوٹا. اب یہ 36 اور 4 40 ہو جائیں گے، یہ 40 ڈیوائڈ بائی کیا آ جائے گا، 40 آ جائے گا. اس کو سیپریٹ کر دیا. اب اس کو دیکھیں کوئی سے ایک ٹیبل پہ دونوں نمبر جا رہے ہوں، ہاں یہ 3 پہ گیا، یہ 2 پہ گیا، 2 3 سے 6 ہو جائے گا، یہ 2 اور 20 3 بائی 20. اب یہ بھی جاتا ہے تو یہاں پر کیا ہوگا، 1 بائی 20 ایوٹا. یہ اس کا کیا آ گیا، کمپلیکس نمبر کا
इन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का जो 4 पार्ट है वो ये दिया गया है कि 5 स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 आयोटा। इसको क्या करेंगे हम, लेट अस z इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 आयोटा। अब 1 बाय z कर देंगे, 1 बाय 5 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर रूट 5। अब इसका क्या करेंगे, हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, 1 बाय z इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लिकेटिव, और डिवाइड भी करेंगे इसको और मल्टीप्लाई भी करेंगे, किसको बोला, स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 आयोटा डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 5 में, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएंगे, 4 आयोटा 4 आई है। अब यहाँ पर क्या आएगा, 1 बाय z इज इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब 1 बाय z इज इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा, और यहाँ पर ये 5 स्क्वायर रूट से कट जाएगा, यहाँ पर 5 बचेगा, माइनस 16 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 1 बाय z इज इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 16 माइनस 1 आ जाएगा। 1 बाय z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस 16 हो जाएगा। 1 बाय z इज इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 21। इसको हम अब जो डिनोमिनेटर है इसको हम सेपरेट कर अलग अलग कर देंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट में लिखना है, तो 5 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 21 प्लस 4 बाय 21 आयोटा। अब ये हमारे पास क्या है, जो हमें कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उस कम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो ये दिया गया है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो हमने 3 नहीं किया वो सेम एज ए क्वेश्चन नंबर 1, और जो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला 3 का पहला और दूसरा पार्ट है वो इसी तरह करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया गया है कि इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा, z2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा और z3 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, देन वेरीफाई। यानी कि ये हमारे पास z1 और z2 और z3 ये 3 कम्प्लेक्स नंबर हैं आपको पास दिए गए हैं अभी, और फिर आपने तस्दीक करना है कि ये जो प्रॉपर्टी है, अब ये प्रॉपर्टी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, इसको प्रूफ करना है कि इसकी लेफ्ट और राइट साइड आपस में बराबर है या नहीं है। तो हमने साबित करना है, यहाँ पर Z1 और Z2 की वैल्यू Z3 की वैल्यू दी गई है, आपने यहाँ पर पुट कर देना है। पुट करने के बाद फिर देखना है कि इसकी लेफ्ट वैल्यू और राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है जो कम्प्लेक्स नंबर निकला है वो क्या आपस में बराबर हैं या नहीं है, तस्दीक करके बताना है आपने। तो अब यहाँ पर क्या है, Z1 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1, ये हमारे पास प्रॉपर्टी जो है वो कम्प्लेक्स नंबर, ये कम्प्लेक्स नंबर है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, इसलिए हम साबित करना है। तो Z1 हम वैल्यू पुट करें, अब Z1 किसके बराबर है, Z1 हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है, Z1 हमारे पास है 2 प्लस 5 आयोटा प्लस Z2 किसके बराबर है 1 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू Z2 किसके बराबर है 1 माइनस 3 आयोटा प्लस Z1 किसके बराबर है 2 प्लस 5 आयोटा। अब इसको हम क्या करेंगे, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 1 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस 5 आयोटा आ जाएगा। अब इसके जो रियल नंबर है 2 है, इधर भी रियल नंबर पास क्या है 1, 2 प्लस 1 क्या हो जाएंगे 3। अब ये हमारे पास कम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट है, ये 5 आयोटा है और माइनस 3 आयोटा है, 5 आयोटा में 3 आयोटा गया तो बाकी बचेंगे हमारे 2 आयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3। अब इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 5 आयोटा है, यहाँ पर माइनस 3 आयोटा है, 5 में 3 के इतने बचेंगे हमारे पास प्लस 2 आयोटा। अब देखो हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट एडिशन में वैल्यू पुट की है, कम्प्लेक्स Z1 और Z2 वैल्यू, तो ये लेफ्ट और राइट साइड वैल्यू के आपस में बराबर आ गए, तो हिंस ये प्रूफ हो गया, यानी कि पास साबित हुआ या हिंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट वो ये दिया कि Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 Z1,
ये हमारे पास प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। तो अब आपने इसको भी साबित करना है कि Z1 और Z2 की वैल्यू पुट करें तो लेफ्ट साइड और राइट साइड के जो कम्प्लेक्स नंबर निकलते हैं वो क्या बराबर आते हैं या नहीं आते हैं। हम वैल्यू पुट करेंगे Z1 इज इक्वल टू क्या है 2 प्लस 5 एयोटा, Z2 1 माइनस 3 एयोटा इज इक्वल टू Z2 हमारे पास 1 माइनस 3 एयोटा और Z1 हमारे पास क्या आएगा 2 प्लस 5 एयोटा होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ 2 1 ज़ा 2, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6 एयोटा प्लस 5 एयोटा और इसको मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस आ जाएंगे 15 एयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा प्लस 5 एयोटा माइनस 6 एयोटा और उसके बाद क्या आ जाएगा माइनस 15 एयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 प्लस अब 2 माइनस 6 एयोटा प्लस 5 एयोटा, अब 15 एयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या होगा -1 के बराबर। 2 प्लस 5 एयोटा माइनस 6 एयोटा माइनस 15 -1 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा 2 माइनस 6 एयोटा प्लस 5 एयोटा प्लस 15 हो जाएगा। 2 प्लस 5 एयोटा माइनस 6 एयोटा प्लस 15 हो जाएगा। अब रियल नंबर जो है वो रियल नंबर में ऐड कर देंगे, जो इसका कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट में अपने इमेजिनरी पार्ट को आपस में जमा नफी कर देना है। 2 प्लस 15 तो क्या हो जाएगा 17, अब 6 में से 5 गया तो 1 एयोटा आ जाएगा इज इक्वल टू 2 प्लस 15 17, 6 में से 5 गया तो हमारे पास क्या होगा -1 एयोटा आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या होगा हिंस प्रूफ, यानी कि पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या है इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो तीसरा पार्ट है Z1 प्लस Z2 इसको इकट्ठा किया है और फिर प्लस Z3, फिर Z1 प्लस ब्रैकेट के बाद अंदर क्या लिखा है Z2 प्लस Z3। ये जो प्रॉपर्टीज दी गई है ना इसको हम कहते हैं एसोसिएट प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब पुट करेंगे Z1 हमारे पास क्या है 2 प्लस 5 एयोटा प्लस Z2 हमारे पास 1 माइनस 3 एयोटा प्लस Z3 हमारे पास है 2 प्लस एयोटा इज इक्वल टू Z1 2 प्लस 5 एयोटा Z2 1 माइनस 3 एयोटा प्लस Z3 2 प्लस एयोटा आ जाए। अब यहाँ पर क्या करेंगे इसको हम ऐड करेंगे रियल और रियल नंबर में इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में जमा नफी कर देंगे। 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा 3, 5 में 3 गए कितने बचेंगे 2 एयोटा। उसके बाद अब ये क्या है प्लस 2 प्लस एयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस 5 एयोटा प्लस 2 प्लस 1 3 एयोटा प्लस 1 -2 एयोटा। अब 3 और 2 ये हमारे पास 5 हो जाएंगे। अब 2 एयोटा प्लस 1 एयोटा तो ये क्या हो जाएंगे 3 एयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस 3 5 प्लस 5 एयोटा -2 एयोटा तो क्या आ जाएंगे 3 एयोटा। अब यहाँ पर देखें इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है वो बराबर हैं, सेटिस्फाई करती हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है बड़ी एसोसिएट प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो भी होल्ड कर सकती है। तो हिंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 4 का जो 4 पार्ट है ये जो प्रॉपर्टीज है इसे हम कहते हैं एसोसिएट प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब एसोसिएट प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट मल्टीप्लिकेशन को भी आपने इसके अंदर भी वैल्यू पुट कर देनी है Z1 Z2 और Z3 की वैल्यू। फिर हमने चेक करना है भी इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आती है बराबर आती है या नहीं आती। तो हम वैल्यू पुट करते हैं Z1 हमारे पास क्या है 2 प्लस 5 एयोटा और उसके बाद Z2 किसके बराबर है 1 माइनस 3 एयोटा। अब इस तरह Z3 हमारे पास क्या है 2 प्लस एयोटा। Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 एयोटा। Z2 हमारे पास है 1 माइनस 3 एयोटा और Z3 हमारे पास है 2 प्लस
आयोटा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, -6 आयोटा प्लस 5 आयोटा -15 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा, इसके से मल्टीप्लाई करें, 2 2 1 1 1 ज़ा 1 1 आयोटा -6 आयोटा, उसके बाद -3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब उसके बाद ये 2 -6 आयोटा प्लस 5 आयोटा, अब ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो इसको क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये प्लस 15 आ जाएगा। 2 प्लस आयोटा आ जाएगा, 2 प्लस 5 आयोटा, अब यहाँ पर ये भी ऐसी तरह 2 प्लस 1 आयोटा -6 आयोटा, अब ये भी क्या होगा, आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको ऐड करें, अब 2 और 15 क्या हो जाएंगे, 17, और 6 में से प्लस 5 के तो -1 आयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा, 2 3 5 हो जाएंगे, और -6 में से +1 गया तो फिर क्या आ जाएगा, -5 आयोटा आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ 72 ज़ा क्या आ जाएगा, 34, उसके बाद प्लस 17 आयोटा, फिर -2 आयोटा, फिर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, -10 आयोटा प्लस 25 आयोटा, उसके बाद -25 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब 34 प्लस 17 आयोटा -2 आयोटा, माइनस ये आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, 10 आयोटा प्लस 25 आयोटा -25, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब देखें कि ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। अब +1 और 35 आ जाएगा। 70 आयोटे में से 2 आयोटा गया तो कितने बचेंगे, 15 आयोटा आ जाएगा इज इक्वल टू, अब इसमें ऐसे करना है आपने, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 25 प्लस 10 35, अब ये 25 में से 10 आयोटा गया तो क्या बचेंगे, प्लस 15 आयोटा आ जाएगा। तो हिंस प्रूव हो गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, हिंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और का लास्ट पार्ट है, अब ये जो प्रॉपर्टी दी गई है ये हमारे पास है एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, यानी कि Z1 प्लस माइनस Z1, भाई इस कम्प्लेक्स नंबर का जो एडिटिव इन्वर्स है वो -Z1 है। इसी तरीके से भाई इस कम्प्लेक्स नंबर का जो एडिटिव इन्वर्स है वो -Z1 है। वैल्यू पुट करेंगे, ये प्रॉपर्टीज पुट करके चेक करते हैं भाई क्या ये भी होल्ड करते हैं, नहीं आती है, यानी कि इसकी वैल्यू Z1 प्लस -Z1 इज इक्वल टू -Z1 प्लस Z1 इज इक्वल टू क्या, 0 के बराबर आती है या नहीं वैल्यू आती है। ये जो दरअसल ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, ये प्रॉपर्टी एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है, क्या ये होल्ड करती है या नहीं करती। हाँ Z1 हमारे पास क्या है, वैल्यू पुट कर रहे हैं, Z1 है 2 प्लस 5 आयोटा, उसके बाद प्लस -Z1 किसके बराबर है, फिर दोबारा वही आ गए 2 प्लस 5 आयोटा, हाँ -2 प्लस 5 आयोटा प्लस Z1 2 प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू क्या है, 0। हाँ अब यहाँ पर क्या आएगा, 2 प्लस 5 आयोटा, उसके बाद माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, -2 -5 आयोटा इज इक्वल टू -2 -5 आयोटा
प्लस 2 प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पर 2 से कट गया तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये आपस में कट गया ये 0, और ये भी क्या है हमारे पास कट गया, ये आपस में कट गया, इज इक्वल टू क्या आएगा 0 इज इक्वल टू 0। तो प्रूफ हो गया कि जो हमारे पास एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाई होती है। आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। सिंप्लीफाई करें, यहाँ पर हमारे पास फार्मूला लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो अलजेब्रिक फार्मूला वो हम इसे यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 1 और उसके बाद क्या आ जाएगा आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। अब 1 आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर होगा प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा, ये इससे कट गया, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई आयोटा। अब यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास वैल्यू है 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। अब बट्टे के अंदर कम्प्लेक्स नंबर आएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको कॉन्जुगेट लेंगे, 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई तो कॉन्जुगेट लेंगे 2 आयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। अब 2 इंटू 2 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय 2 2 ज़ा, अब हमारे पास ये 4 हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। अब यहाँ पर क्या होगा कि हमने इसको 2 आयोटा पर डिवाइड बाय 2 आयोटा मल्टीप्लाई भी किया, उसके मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। अब 4 आयोटा प्लस 2 इंटू -1 डिवाइड बाय 4 -1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, -2 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय 5 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, एक्स प्लस वाई आयोटा। इसको हमें अलग कर लेना है, -2 बाय 5 प्लस 4 बाय 5 आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। अब यहाँ पर जो रियल नंबर है वो इस राइट साइड के रियल नंबर के बराबर रखना है, और राइट जो लेफ्ट साइड पे जो इमेजिनरी पार्ट है उसको राइट साइड के इमेजिनरी पार्ट बराबर रखना है। तो -2 बाय 5 इज इक्वल टू एक्स, और इसी तरीके से 4 बाय 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वाई। ये हमने क्या किया है एक्स और वाई की वैल्यू मालूम। यहाँ पर क्या होगा 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ 2x, उसके बाद इसको 2x को मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा के साथ -2xi प्लस वाई अयोटा माइनस वाई अयोटा स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा, 2x माइनस 2x अयोटा प्लस वाई अयोटा माइनस वाई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा, 2x उसके बाद -2x अयोटा प्लस वाई अयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 4 प्लस 2 अयोटा आ जाएगा। अब इसका जो रियल पार्ट उसको इकट्ठा कर लेंगे 2x प्लस वाई, और इसी तरीके से यहाँ पर क्या आ जाएगा -2x प्लस
वाई आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड पे जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट हो गया, और राइट साइड के जो कम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो हमने इसको बराबर रख देंगे। लेफ़्ट साइड पे क्या आएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और इसी तरीके से ये पहली क्वेश्चन बन जाएगी हमारे पास। और दूसरा क्या है, जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 2। तो इसे ऐड कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएंगे, ये कट जाएंगे, प्लस वाई और प्लस वाई क्या हो जाएंगे, 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 2 3 ज़ा 6, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगी। ये हमारे पास y की वैल्यू निकल आई। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 1 उठाएंगे आप, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, यहाँ पर आपने y की वैल्यू पुट कर देनी है। y इज इक्वल टू क्या है, 3 है, तो हम 2x प्लस वाई की जगह पर आप 3 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 3, 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2। ये x की वैल्यू निकल है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपने क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे आप, a को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, तो 1a, उसके बाद प्लस क्या आ जाएगा, 3a आयोटा प्लस b आयोटा, उसके बाद प्लस 3b आयोटा स्केयर हो जाएगा, इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। अब यहाँ पर मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, a प्लस 3a आयोटा प्लस b आयोटा प्लस 3b, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर होता है। -8 प्लस 11 आयोटा। यहाँ पर क्या करेंगे आप, a, ये हमारे पास रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है कम्प्लेक्स नंबर का, -3a -3b, इसको इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद प्लस यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट को अलग इकट्ठा कर लेंगे, 3a प्लस b इज इक्वल आयोटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, a -3b, इधर लेफ्ट साइड का जो रियल पार्ट है, राइट साइड का जो रियल पार्ट है इज इक्वल टू क्या है, वो -8 के बराबर है। ये पहली क्वेश्चन आ गई। दूसरी क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 3a प्लस b इज इक्वल टू क्या होगा, 11। ये हमारे पास -8 के बराबर है, और ये 11 है, तो इसकी क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगी, 2 आ गई। अब इसको हम मुवाजना करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ कुछ भी ना हो तो 1 होता है, यहाँ पर क्या है, 3 है। आप इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, और क्वेश्चन नंबर 2 को आपने क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, प्ले करेंगे इसके साथ, तो क्या आ जाएगा, 3a प्लस -3 3 ज़ा 9b 24। आप इस 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो वही सेम सब इक्वेशन बन जाएगी, 3a प्लस b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 11। ना करेंगे इसको। अब देखो ये हमारे पास +3 है और यहाँ भी +3 है, इसको हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, प्लस माइनस कर दिया, माइनस माइनस हमने सब्ट्रैक्शन की, तो ये 3a -3 से कट जाएंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, -9 और -1 भी, -10 भी आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 24 में से 11 गया तो क्या बचेगा, -13 आ जाएगा। माइनस से कट गया तो यहाँ पर क्या होगा, 10b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 13। तो b इज इक्वल टू क्या होगा, 13/10। ये b की वैल्यू निकले। अब इसी तरीके से आपने इक्वेशन नंबर a लेनी है, a -3b इज इक्वल टू क्या होगा, -8 आ गया। अब यहाँ पर आपने b की वैल्यू पुट कर देनी है, a -3 इंटू 13/10 इज इक्वल टू क्या होगा, -8 आ जाएगा। a इज इक्वल टू 39 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू -8। a इज इक्वल टू -8 प्लस 39/10, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 10 आ जाएगा, -80 प्लस 39। तो a इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, 80 में 39 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 1, यहाँ 7 7 और 3 गए, बाकी हमारे पास के बचेंगे 4। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस, यहाँ पर हमारे पास होगा -41 डिवाइड बाय 10। ये इसका क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू निकल आएगी। ये हमारे पास क्या आंसर है।